Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up the next two case studies, which are case study number 11 and 12. We have already covered the first 10 case scenarios and also a lot of MCQs. In case you have not seen those videos, please check out the description box below. I've mentioned the link of playlist where you'll find out all the videos related to audit MCQ booklet. Also I've mentioned the link of other videos as well. In case you find them useful, please check them out. Okay, so let's begin with case study number 11 first. Today, the first case study is going to be 11 and then we are going to cover the 12th case study. Let's begin with case study number 11. So, ABC Limited is in the business of trading garments. Within a span of 5 years since its incorporation, the company has gained a good market reputation. Last year, in its Kochi warehouse, the inventory was less than 1% of the total inventory value. तो काफ़ी कम inventory थी, immaterial amount की कह सकते हैं हम. सिर्फ 1% of the total inventory value उसकी कोची warehouse में रखी हुई थी. So the auditor, instead of witnessing or performing the physical count of the inventory, relied upon the management's inventory confirmation, and management in turn relied upon the warehouse keeper's stock register without verifying the actual count. तो ना ही मैनेजमेंट ने वेरीफाई किया, ना ही ऑडिटर ने वेरीफाई किया. दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा करके अल्टीमेटली वेयरहाउस कीपर के स्टॉक रजिस्टर पर भरोसा किया एंड दे प्रोसीडेड विद देयर ऑडिट. ओके, नाउ द सेम ईयर देयर वाज सम डिफरेंस बिटवीन द स्टोर रजिस्टर एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रजिस्टर और हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है उसी साल में जिस साल में ऑडिटर ने मैनेजमेंट पर रिलाई किया और मैनेजमेंट ने वेयरहाउस कीपर पर रिलाई किया था. The management considered it to be an immaterial amount and wrote it off through the miscellaneous profit and loss account. Okay. In the current year, while performing the analytical procedure SA 520. Now, in the current year, while performing the analytical procedure, the auditor saw significant reduction in sales through Kochi warehouse, whereas there was a spike in freight charges to Kochi. Through further examination, the auditor noticed that there was increase in the number of shipments to Kochi and increase in the number of invoice cancellation instances and sales return instances from the customers of GST unregistered category. However, this year the inventory lying at Kochi is 4.5% as per books. Earlier it was 1%, now it is 4.5%. Also, अगर हम देखें तो ये आपको क्या लगता है एज एन ऑडिटर आपका भी शक जाता कि नहीं जाता? बिल्कुल जाता. क्यों? क्योंकि सेल्स में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हुई है कोची वेयरहाउस से, जबकि देखा जाए फ्रेट चार्जेस में इंक्रीज़ आ रहा है. वहाँ के जो इनवॉइस कैंसिलेशन है वो ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, सेल्स रिटर्न ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो शिपमेंट ज़्यादा हो रही है कोची को. तो इस वजह से आपका डेफिनेटली डाउट अराइज होगा. और यहाँ पर इस टाइम इन्वेंट्री का जो काउंट है वो भी परसेंटेज वाइज इफ वी सी इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. तो डेफिनेटली बनता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स के हिसाब से कि आपको डिटेल्ड चेकिंग करने की ज़रूरत है या थोड़ा सा और चेक करने की ज़रूरत है. राइट. The auditor inquired on the periodicity of physical verification and sales process through Kochi warehouse. The management gave the following response to the auditor. The physical verification takes place every 6 months and the warehouse keeper is responsible for the physical verification and sending the records back to the head office. अगर हम यहाँ पर देखें तो जो warehouse keeper है वो ही physical verification कर रहा है और वो ही responsible है इस चीज़ को देखने के लिए. और warehouse keeper क्या कर रहा होगा? स्टॉक को मेंटेन भी कर रहा होगा. तो physical verification का काम भी warehouse keeper की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टॉक्स को मेंटेन करना भी स्टॉक्स को मेंटेन करना भी वेयरहाउस कीपर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. बिकॉज ऑफ लो ऑपरेशंस इन द पास्ट ईयर्स द वेयरहाउस कीपर हिमसेल्फ टेक केयर ऑफ द इनवॉइसिंग डिस्पैचिंग ऑफ गुड्स. तो यहाँ पर देखें एक वेयरहाउस कीपर काफ़ी सारे काम कर रहा है. वेयरहाउस कीपर इनवॉइसिंग का काम भी कर रहा है, डिस्पैच करने का काम भी कर रहा है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी वही देख रहा है. मंथली इनवॉइस डिटेल्स अलॉन्ग विद द मंथली स्टॉक रजिस्टर इज सेंट टू द हेड ऑफिस. Further, this year too, there has been a substantial difference among the inventory as per books, inventory as per stock register and inventory as per physical verification in descending order. तो मतलब इसमें ज़्यादा आ रहा है, फिर इसमें कम आ रहा है, फिर इसमें उससे भी कम आ रहा है. तो बुक्स में हमारे सपोज 100 यूनिट्स दिखा रहा है तो स्टॉक रजिस्टर में 90 दिखा रहा है और फिजिकल वेरिफिकेशन करी तो 80 ही दिखा रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर आपकी बुक्स, स्टॉक रजिस्टर और फिजिकल वेरिफिकेशन कुछ भी मैच नहीं हो रहा. बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात है ये तो. द ऑडिटर डिसाइडेड टू विजिट द कोची वेयरहाउस. अब गलती मिली है तो ऑडिटर ने सोचा कि अब कोची वेयरहाउस जाना तो बनता है.
and conduct the root cause analysis and get the correct closing value of the inventory. After the visit, the auditor concluded that the warehouse keeper was issuing stocks with invoices. However, on sales return, the credit notes were issued to various customers and the entry was made in the stock register of goods received on sales return. But फिजिकली द गुड्स वर नेवर रिटर्न. गुड्स आपको वापस मिल ही नहीं रही, लेकिन आप सिर्फ इन्वॉइसिंग बेसिकली आप रजिस्टर में अपनी बुक्स के अंदर तो एंट्री मार रहे हो कि आपको गुड्स रिसीव हुए हैं बिकॉज देयर वाज अ सेल्स रिटर्न, लेकिन एक्चुअल में आपको गुड्स रिसीव ही नहीं हो रहे. तो गुड्स रिसीव नहीं हो रहे, इसीलिए आपकी जो फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम है आपकी जो इन्वेंट्री है वो कम आ रही थी एज कम्पेयर टू द स्टॉक रजिस्टर, क्योंकि स्टॉक रजिस्टर में तो आपने मेंशन कर दिया that these are the goods which have been received due to sales return, but actual में they are not physically present in the warehouse. That is the reason of this difference in the stock register and the physical verification. अब यहाँ पर आपने जो है क्रेडिट नोट्स भी इशू कर दिए, ठीक है. However, on sales return, the credit notes were issued to various customers and the entry was made. तो आपने क्रेडिट नोट्स इशू कर दिए, तो यहाँ पर बुक्स में भी आपकी करेक्शन हो गई होगी. Okay. The auditor also doubts that the same instance might have happened last year. ऐसा हो सकता है ना, पिछले साल भी यही गलती हुई हो, लेकिन पिछले साल तो चेक नहीं किया. Because of which there was a difference between the physical stock and the books. हो सकता है कि आपके पिछले साल भी कुछ गलती हो जिसकी वजह से आपका ओपनिंग गलत आ रहा है. ओपनिंग गलत आ रहा है तो डेफिनेटली योर क्लोजिंग इज ऑल्सो नॉट मैचिंग फॉर द करंट ईयर. बिल्कुल ठीक बात है. On this information, the management has asked the auditor that why this was not brought into notice last year and whether the audit not conducted properly then. Further, a consultant was appointed by the management for the overview of the internal controls with regard to verification of inventory and suggested the recommendations. ठीक है. Let's see what questions they have framed from this case scenario. The first question is, in the view of above case scenario, which according to you is the correct statement? Only errors can be expected to be identified during the year. ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एरर्स ही मिलेंगे, फ्रॉड भी अगर हो रहा है तो वी हैव टू सी. सेकेंड इज ओनली द स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कैन बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिट. नो, ऐसा नहीं है, हमें बाकी चीज़ें भी चेक करनी पड़ती हैं. द ऑडिटर कंटेंट्स दैट द लास्ट ईयर इन्वेंट्री लेवल्स इन कोची वॉज नॉट इन सैम्पलिंग मटीरियलिटी लेवल एंड देयरफॉर द इशू वॉज नॉट आइडेंटिफाइड. दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑडिट रिस्क. ठीक बात है, सैम्पलिंग हम सैम्पलिंग के बेसिस पर ही ऑडिट करते हैं. देयर इज एन इनहेरेंट रिस्क ऑलवेज. तो इस वजह से क्योंकि वो हमारे मटीरियलिटी लेवल को कॉन्सेप्ट को मटीरियलिटी लेवल में नहीं आ रहा था, ऐसे 320 एंड 450 हमारा अफेक्ट नहीं कर रहा था, इस वजह से वी डिड नॉट मूव फर्दर विद द प्रोसीजर्स. ठीक लग रहा है ये वाला ऑप्शन, पर फिर भी हम एक बार डी देख लेते हैं बिकॉज वी हैव टू सिलेक्ट 1 out of 4 की जो मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर है. ठीक है. सो द फोर्थ ऑप्शन इज द मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट ऑल द फ्रॉड्स एंड एरर्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद द स्टैट्यूटरी ऑडिट. तो ऐसा नहीं हो सकता, हम कोई फ्रॉड पता लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है तो फ्रॉड कई बार पता लगता भी नहीं है. सो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फ्रॉड हमेशा ही आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए विद द स्टैट्यूटरी ऑडिट. एरर्स भी हो सकते हैं आइडेंटिफाई हो सकते हैं नहीं हो सकते, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितने मटीरियल हैं. और क्योंकि हम सैम्पलिंग के बेसिस पर काम करने वाले हैं, देयर इज़ एन इनहेरेंट रिस्क ऑलवेज. तो दैट इज़ वाई फोर्थ ऑप्शन तो आपको बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है. तो ओनली एरर्स कैन बी एक्सपेक्टेड, ऐसा भी नहीं है. फ्रॉड को ढूंढने की कोशिश की जाती है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मिल जाएगा. तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो गई. स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस ही चेक नहीं करने होते, हमें अदर चीज़ें भी देखनी होती है. जैसे हम इंटरनल कंट्रोल्स विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पर डिसाइड आर प्रोसीजर्स वगैरह. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टैट्यूटरी कंप्लायंस ही देखा जाता है. तो देयरफॉर दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन अमंग्स दी 4. कि मटीरियलिटी लेवल में नहीं आया हमारी सैम्पलिंग के, इसीलिए हमने सैम्पलिंग में सैम्पल साइज में उसको कंसिडर नहीं किया. दैट इज़ वाई इट वाज द इशू वाज अनआइडेंटिफाइड. तो ये ऑडिटर का स्टैंड बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है. सो द फर्स्ट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर वुड बी सी. Let's move on to the next question. Which components of audit risk are represented in the aforesaid case scenario? तो इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क की प्रॉब्लम थी. कैसे? कंट्रोल रिस्क इसीलिए क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं थे, तभी तो ऐसी गड़बड़ हो रही थी कि बुक्स आपकी रजिस्टर से मैच नहीं हो रही और रजिस्टर आपके फिजिकल स्टॉक से मैच नहीं हो रहे. आपके कंट्रोल्स में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है. और दूसरा, आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे कि ऐसी मिस स्टेटमेंट क्यों हो रही है, ऐसी मिस मैचिंग क्यों हो रही है, क्योंकि एज एन ऑडिटर आप पिछले साल तो इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाए. तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ऑडिटर इन रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई ना कर पाए, मे बी बिकॉज दे आर नॉट कवर्ड अंडर द सैम्पल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मटीरियलिटी, राइट. सो इसीलिए कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क बहुत ज़्यादा है. ठीक है. सो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन में इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क. नो, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, यस.
फ्रॉड रिस्क तो नहीं कह सकते हम, नेचर एंड साइज की वजह से फ्रॉड रिस्क तो नहीं है. रिस्क ऑफ एरर बिकॉज देर वॉज एरर इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लास्ट ईयर, नो, दिस इज नॉट द टाइप ऑफ रिस्क विच इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर केस सिनेरियो. द मेन ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट्स की बात करें तो वैसे भी ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट्स हमारे कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क होते हैं, जो कि कंट्रोल रिस्क ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट डिजाइन एंड इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की वजह से हो रहे हैं ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स, एंड द ऑडिट डिटेक्शन रिस्क ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर नॉट आइडेंटिफाइंग द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसिंग स्टेटमेंट्स विच वर नॉट आइडेंटिफाइड इन द प्रीवियस ईयर ऑल्सो. So that is why these are the two types of risks which are present. Clear till here? Okay. Let's move on to the next case question. Which internal control seems to have been compromised as the root cause here? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सारा काम वेयर हाउस कीपर ही कर रहा था. हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी अथॉरिटीज़ बंदे को दे रखी है जिसकी वजह से गलतियाँ हो रही हैं. अगर 2-3 बंदे इन्वॉल्व होते हैं काम में तो चांसेस कम रहते हैं गलती होने के, बिकॉज एक का काम दूसरा चेक करता है, दूसरे का काम तीसरा चेक कर लेता है, या एटलीस्ट एक लेवल पर जाकर पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है. बट जब एक ही बंदा काम कर रहा है ना, तो हो सकता है कि कोई आपको चेक करने वाला नहीं है, कोई गलतियाँ अगर हो रही है तो वो बहुत लास्ट में जाके पता चल रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है. सो दैट इज़ वाई कौन सा इंटरनल कंट्रोल यहाँ मिसिंग है, तो मेरे यहाँ हिसाब से यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं हो रहा है, एक ही बंदे पर सारी ड्यूटीज़ हैं. दैट इज़ वाई दिस इज़ हैपनिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी इन दिस केस, बिकॉज यहाँ पर सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पर लैप्स इन कंप्लायंस कंट्रोल्स की बात नहीं हो रही, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है लैप्स इन कंप्लायंस कंट्रोल्स लीडिंग टू नॉन कंप्लायंस ऑफ शेयरिंग इन्वेंट्री लेवल विद जीएसटी डिपार्टमेंट. तो ये मुद्दा नहीं है. मुद्दा ये है कि जो आपके गुड्स हैं वो रिटर्न तो हो रहे हैं इन बुक्स, बट दे आर नॉट एक्चुअली रिटर्नड इन फिजिकल फॉर्म, राइट. inadequate records and documents leading to non recording of the correct value, no, records तो maintain हो रहे हैं, but physically the stocks are not returned. So that is why C is the correct option. ठीक है. Let's move on to the next question. To ensure that such instances are not taking place in other warehouses as well, the management wants to get an audit done. Which of the following audit is right in the above case study? तो बेसिकली यहाँ पर आप देखो तो आपकी इंटरनल कंट्रोल्स में लैक है, तो इसीलिए आपको इंटरनल ऑडिट ही कराना चाहिए, उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा. सो मैनेजमेंट ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इंटरनल ऑडिट की ज़रूरत है. एज इट सीम्स देयर इज अ लैप्स इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड सच अदर लैप्सेज इन इंटरनल कंट्रोल्स कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड. अगर कोई और भी अनआइडेंटिफाइड लैप्स होगा तो वो भी पता चल जाएगा. ऑपरेशनल ऑडिट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशंस में गड़बड़ नहीं है. टैक्स ऑडिट की भी ज़रूरत इसमें नहीं हो रही. Okay, let's move on to the last question for this case study, which is which segregation of duties aspect seems to have been compromised here. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी इशू आ रहा है कि आप जो अपनी बुक्स में अमाउंट लिख रहे हो, आप अपनी जो बुक्स में अमाउंट लिख रहे हो वो आपके मैच नहीं हो रहे विद द फिजिकल इन्वेंट्री, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आपके पास, आपको यही नहीं पता कि आपके पास कस्टडी ऑफ द गुड्स है या नहीं है. तो दैट इज़ वाई कस्टोडियन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो कस्टोडियन हमारे 2 में आ रहा है, तो ये दोनों हो सकते हैं. सेकेंड, अगर मैं बोलूँ तो बुक्स के अंदर आप रिकॉर्ड्स को सही से मेंटेन नहीं करें क्योंकि आपकी बुक्स में अलग आ रहा है, आपकी रजिस्टर में अलग आ रहा है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस. तो यहाँ पर आप रिकॉर्ड कीपिंग में भी गड़बड़ कर रहे हो, दोनों में रिकॉर्ड कीपिंग है. तो बेसिकली अगर मैं देखूँ ये वाले दोनों पॉइंट्स तो मेरे गलत हो गए. वाई? बिकॉज रिकॉर्ड कीपिंग और कस्टोडियन अलग अलग है. इधर रिकॉर्ड कीपिंग और कस्टोडियन दोनों में नहीं दे रखे. ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स तो मेरे पहले एलिमिनेट हो गए. अब आती है इन दोनों में से बात. तो अब ऑथराइजेशन और एग्जीक्यूशन पर अगर हम फोकस करें तो यहाँ पर ऑथराइजेशन का इशू नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेयरहाउस कीपर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, ऑथराइज कर रखा है ऑलरेडी. यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है कि जो काम उसको दिया है वो एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं हो पा रहा, राइट. तो वो एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं हो पा रहा, इसीलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. अब दूसरी चीज़ और बताती हूँ, ऑथराइजेशन जो है वो जनरली पेमेंट्स के केस में यूज़ होता है कि आपको कोई भी पेमेंट्स करनी है, कोई भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए ऑथराइजेशन मिला है या नहीं. और यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम नहीं थी. यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आ रही थी कि एक ही बंदे पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली थी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था. सो दैट इज़ वाई द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस वुड बी सी. ठीक है. Let's move on to the next case study. I hope you have marked all the questions which you attempted incorrectly in this case study. Okay, let's move on to the next case study, which is case scenario number 12. QRP Lifecare Private Limited, the company or QRP is engaged in the business of pharmaceuticals. The company is based in Hyderabad and has an annual turnover of INR 400 crores. One of the directors of the company did not give declaration to the company under section 164 subsection 2 of the Companies Act 2013 as at 31st March 2020. The auditors of the company completed their audit of the financial statements for the year ended 31st March 2020 and were awaiting this declaration.
But the management was of the view that they will not be able to receive this declaration. All the other directors had given the required declaration and the auditors has also verified the same. तो बेसिकली यहाँ पर डायरेक्टर्स ने 164 सबसेक्शन 2 की डिक्लेरेशन दे दी है, एक्सेप्ट वन डायरेक्टर में भी जिसने अभी तक डिक्लेरेशन नहीं दी है. नाउ QRP हैड गिवन एन एडवांस. तो इसको पढ़ने से पहले ये चीज़ पर हम बात करें. सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 की डिक्लेरेशन क्या ऑडिटर को देखने की ज़रूरत होती है? यस. द ऑडिटर हैज़ टू रिपोर्ट इन हिज रिपोर्ट कि क्या उसको 143 सबसेक्शन 3 के हिसाब से वेदर ही हैज़ रिसीव्ड ऑल द डिक्लेरेशंस अंडर सेक्शन 164(2) और नॉट. इफ़ ही हैज़ नॉट रिसीव्ड सो ही हैज़ टू रिपोर्ट दिस मैटर. ठीक है. तो ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड पॉइंट होता है. अगर आपको सेक्शन याद है 164 सबसेक्शन 2 का, तो उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस बता रखी हैं 2 रीजंस की वजह से. एक तो नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, डिवेंचर्स वाली बात लिखी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आपकी कॉन्सिक्यूटिवली 3 ईयर्स के लिए फाइल नहीं की जाती या एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की जाती, उसकी रिलेटेड बात है जिसमें डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो जाता है. तो इसकी एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती है कि दे आर नॉट डिस्क्वालिफाइड. अब कंपनी ने सारे डायरेक्टर्स की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं दी है, डिक्लेरेशन नहीं दी है, सॉरी, कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है. इसीलिए यहाँ पर देर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि ऑडिटर को इस चीज़ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा, है ना. अभी ये कंपनी ऑडिट से रिलेटेड लग रहा है. नेक्स्ट हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, देखते हैं. QRP हैड गिवन एन एडवांस अमाउंटिंग टू INR 50 करोड़ टू इट्स सब्सिडरीज RPS लिमिटेड. तो एक हमारी हो गई QRP की सब्सिडरी हो गई हमारी RPS. ठीक है. नाउ RPS इज़ अ पब्लिक कंपनी और ये हमारी प्राइवेट कंपनी. ठीक है. ऑन 12th of January 2016 फॉर कैरिंग आउट सर्टन प्रोजेक्ट्स द नेटवर्थ ऑफ द सब्सिडरी हैड इरोडेड सब्सटैंशियली एज ऑफ 31st March 2020 एंड लुकिंग एट द फ्यूचर प्रोजेक्शंस देयर वाज नो सर्टेनिटी रिगार्डिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सब्सिडरी इन फ्यूचर ईयर्स. तो ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है. ठीक है. तो इस केस में देखना पड़ेगा हमें. नाउ QRP हैज़ अनदर सब्सिडरी SPS. तो अब QRP की एक और सब्सिडरी है, 2 सब्सिडरीज हो गई. एक और है SPS लिमिटेड, ये भी एक पब्लिक कंपनी है, ये UK फॉरेन कंपनी है. द कंपनी हैड आउटस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंटिंग टू 10 करोड़ फ्रॉम SPS. QRP ऑब्जर्व दैट देयर हैव बीन सम FEMA non-compliances on the part of QRP, but the management had an action plan which they had initiated, and on the basis of which management was sure that the non-compliance would be done good and there would be no penalty on the company. In case penalty arises in future, the impact would be significant. तो impact significant हो सकता है penalty का, but management कह रही है कि हम पर ऐसी कोई penalty नहीं आएगी. लेकिन क्या आप management की सारी बातों पे भरोसा कर लोगे? देखते हैं. The auditors of QRP also evaluated this matter by involving a regulatory matters expert and agreed with the management's view. ठीक है. तो ऑडिटर ने एक्सपर्ट की हेल्प ली. एक्सपर्ट की हेल्प कौन से SC के हिसाब से ली होगी, SC 620 के हिसाब से ली होगी, और उस एक्सपर्ट पर ये ऑडिटर रिलाई करके मैनेजमेंट के व्यू पर रिलाई कर पा रहा है. ठीक है. QRP was using a customized ERP package up to 31st March 2019, that is the previous year. However, with effect from 1st April 19, QRP moved to SAP ERP package, considering the increase in the size of operations of QRP. The auditors of QRP were of the view that for the financial year 31st March 2020, being the first year of SAP implementation, no work on IT controls would be required, and they were also evaluating to qualify report on IFC because on the basis of their experience on other clients in the past they had found that IT controls in the first year of ERP implementation very weak. तो यहाँ पर देखो क्या बात लिख रखी है. यहाँ पर बोल रखा है कि सिंस ये फर्स्ट ईयर है SAP इम्प्लीमेंटेशन का, तो इस केस में ऑडिटर्स को लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें IT कंट्रोल्स को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके इंटरनल कंट्रोल्स को देखने की ज़रूरत ही नहीं है. वाई? बिकॉज इट्स द फर्स्ट ईयर एंड इस केस में डेफिनेटली द IT कंट्रोल्स आर गोइंग टू बी वीक. दे आर ऑलरेडी श्योर. अब ये श्योरिटी उनको किस बेसिस पर है? उनको ये श्योरिटी है ऑन द बेसिस ऑफ द अदर क्लाइंट्स के बेसिस पर वो ऐसी ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं कि पास्ट में भी उन्होंने दूसरे क्लाइंट्स को देखा है कि जिस साल में वो नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं तो उस साल में IT कंट्रोल्स जनरली वीक ही होते हैं. तो आपके हिसाब से क्या ऑडिटर सही कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि आपको IT कंट्रोल्स को चेक करके फिर डिटर्मिन करना चाहिए था ना कि वीक है उनके IT कंट्रोल्स या नहीं. आप दूसरे क्लाइंट के बेसिस पर इस पर्टिकुलर क्लाइंट पर कैसे ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो, कैसे सोच सकते हो इस बारे में, विच इज़ टोटली इनकरेक्ट. On the basis of above mentioned facts, you are required to answer the following MCQs. How should the auditors of QRP deal with the matter related to non-receipt of declaration? They should report this matter as per Companies Act. So let's see what answers they have given. Auditors may perform alternate procedure. तो alternate procedure क्या perform करोगे ना इस केस में? If the auditors have been able to verify that all the directors except one has given
except one have given the required declarations as per Companies Act, then it should be ignored. No, we cannot ignore this matter. This is very important. There is no reporting implication, तो ये भी गलत हो गया. Auditors would need to report this matter in their main report. Yes, they have to report it. So the correct answer in this case will be D. As per which section? As per section 143 subsection 3. Mention कर देती हूँ यहाँ पर. This is as per section 143 subsection 3. Okay. Let's move on to the next question. How should the auditors of QRP deal with the matter related to erosion of net worth of RPS? Is there any reporting implication for the same? तो अब इस केस में अगर हम देखें तो नेट वर्थ डेफिनेटली कम हो रही थी, है ना. इस वजह से क्या है, QRP पे डेफिनेटली इफेक्ट आएगा. तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि बुक्स में क्या इसका इफेक्ट दे रखा है, इसकी एंट्री वगैरह पास कर रखी है. अगर इसकी इफेक्ट को कंसिडर किया हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर इफेक्ट्स को कंसिडर नहीं किया तो डेफिनेटली आई नीड टू मेंशन दिस इन माय रिपोर्ट. आई हैव टू क्वालिफाई माय रिपोर्ट कि भाई ये पैसा नहीं आ पाएगा. हम ये नहीं दिखा सकते कि ये हमें रिकवरेबल अमाउंट है और ये मिल जाएगा. नो, वी हैव टू मेंशन कि ये रिकवरेबिलिटी में बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि नेटवर्थ बहुत ज़्यादा इरोड हो रही है ऑफ दैट कंपनी जिससे हमें पैसा लेना है. राइट. सो लेट्स सी व्हाट ऑप्शंस दे हैव गिवन. इन रिस्पेक्ट ऑफ QRP देयर इज नो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन, तो बिल्कुल गलत है. रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन तो डेफिनेटली अराइज हो रही है बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कवर्ड. यूजर्स को पता होना चाहिए इस बारे में. इन रिस्पेक्ट ऑफ QRP, ऑडिटर्स ऑफ QRP वुड नीड टू गिव एन एम्फेसिस ऑफ मैटर इन देयर रिपोर्ट कंसिडरिंग द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व. तो EOM पैरा की अगर मैं बात करूँ, EOM पैरा आप तब देते हो जब आपको कोई अपनी ओपिनियन में मॉडिफिकेशन या मतलब आपकी कोई डिफरेंट ओपिनियन नहीं है उस पर्टिकुलर मैटर पे जो आपने बाकी ऑडिट रिपोर्ट पर अपने फाइनेंशियल्स पर रिपोर्टिंग करी है, उसके अलावा आपको कोई डिफरेंट ओपिनियन नहीं फॉर्म हो रहा. एंड दैट टू द मैटर हैज़ बीन मेंशन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यहाँ पर तो हमें देखना पड़ेगा ना मेंशन्ड है भी या नहीं. So in respect of QRP, auditors of QRP would need to give a qualification respect of non-recovery of advances from RPS if the adjustment entry is not recorded in the books. Books में रिकॉर्ड हो जाती तो फिर मैं शायद EOM में दे के ख़त्म भी कर देती एक बारी को कि ठीक है ये वाली चीज़ है, इस पर मुझे आपका ध्यान लेकर आना ज़रूरी है. लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो डेफिनेटली यू विल हैव टू give the qualification. The EOM para is not a substitute for qualification, right? So in this case, C seems to be correct till now. Let's read D option also. In respect of QRP, the auditors of QRP would need the management to include a note in the financial statements of QRP explaining about the recoverability. लेकिन सिर्फ और सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में होने से क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी? नो. ऑडिटर को भी इस चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या उसको मॉडिफिकेशन देने की ज़रूरत है या फिर EOM पैरा में देने से हो जाएगा. दैट टू आफ्टर सीइंग कि नोट्स टू अकाउंट्स में मैनेजमेंट ने दिया है या नहीं. बट हाँ, अगर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो डेफिनेटली मॉडिफाई ही करना पड़ेगा बिकॉज अगर एडजस्टमेंट एंट्री ही पास नहीं हुई इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द करेक्ट ऑप्शन सीम्स टू बी C. ओके, लेट्स मूव ऑन to the next question. Do you agree with the way auditors have handled the matter related to FEMA non-compliances? How would you deal with this matter? तो यहाँ पर अगर हम FEMA compliances की बात करें तो ऑडिटर्स ने एक्सपर्ट की हेल्प ली और एक्सपर्ट ने कहा है कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी. लेट्स सी इसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं. तो इसमें मेरे हिसाब से तो ऑडिटर ने मैटर को अप्रोप्रिएटली हैंडल किया. क्यों? क्योंकि ये लॉ का नॉन कंप्लायंस था, ये लॉ के नॉन कंप्लायंस से रिलेटेड था एंड ऑडिटर को लगा ये उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है तो उसने किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले ली. ठीक है, मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा नहीं किया सीधा सीधा. ही हैज़ टेकन द हेल्प फ्रॉम द एक्सपर्ट एंड आफ्टर चेकिंग कि वो एक्सपर्ट कितना सही है उसके बेसिस पर ही डिसाइडेड दैट ओके आई कैन रिलाई ऑन दी वर्क ऑफ एक्सपर्ट एंड नाउ ही इज़ रिलाइंग ऑन दी वर्क ऑफ एक्सपर्ट. सो इस केस में मेरे हिसाब से ऑडिटर ने अपने पार्ट पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ही हैज़ डन फुल जस्टिस टू दिस केस और उसने मैटर को सही से हैंडल भी किया है. तो इस पर्टिकुलर केस में ऑडिटर तो सही है. ठीक है, तो ऑडिटर डिडंट हैंडल दिस मैटर अप्रोप्रिएटली वाली तो लाइंस आप काट ही दो. ठीक है, तो ये कट गया ये वाले में. बाकी कुड हैव हैंडल्ड दिस मैटर इन अ बेटर मैनर, तो नहीं भाई उसने सही से हैंडल ही किया है. स्टिल वी आर गोइंग टू रीड 2 3 4 ऑप्शंस वंस अगैन. नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज ऑडिटर हैंडल्ड दिस मैटर अप्रोप्रिएटली, बिल्कुल ठीक. द मैनेजमेंट वुड नीड टू इंक्लूड दिस मैटर इन द नोट्स टू अकाउंट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल सही. मैनेजमेंट को भी इस चीज़ को नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा नॉन कंप्लायंस हो रहा है बट पेनल्टी अराइज नहीं होगी बिकॉज वी आर गोइंग टू करेक्ट द सेम. तो इस केस में डेफिनेटली दिस सीम्स टू बी द करेक्ट ऑप्शन. स्टिल वी आर गोइंग टू रीड द अदर टू. Auditors handled this matter appropriately, but they would also need to include the modification in the report because the impact of penalty if levied can be material. तो यहाँ पर modification देने की ज़रूरत नहीं है because अभी गलती नहीं हुई है. ठीक है,
मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. ऑडिटर्स कुड हैव हैंडल्ड दिस मैटर, क्योंकि वो कह रहे थे ना कि मटीरियल इफेक्ट हो सकता है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि पेनल्टी लगेगी ही नहीं. ऐसा ऑडिट मैनेजमेंट को भी लग रहा था और ऑडिटर के एक्सपर्ट को भी लग रहा था. तो मॉडिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है. Auditor could have handled this matter in a better way by also involving a tax expert, because this might result in a penalty and that may have some taxation impact on the company. तो मेनली स्टैट्यूटरी ऑडिटर का ये काम तो नहीं होगा कि वो टैक्स एक्सपर्ट को भी लेके आए. बेसिकली ही हैड टू सी पेनल्टी से रिलेटेड पॉइंट कि पेनल्टी लगेगी या नहीं. ठीक है. सो अगर पेनल्टी नहीं लगेगी तो टैक्स इफेक्ट्स भी ऑटोमेटिकली नहीं आएंगे. तो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस वुड बी बी. ओके. Let's move on to the next question. QRP has been preparing the consolidated financial statement, but they do not consolidate the financial statements of SPS every year. SPS, if you know, is a foreign company. तो वो हर साल इसको कंसोलिडेट नहीं कर रहे. दिस इज बिकॉज द फाइनेंशियल ईयर फॉलोड बाय SPS इज Jan to December एज अगेंस्ट April to March फॉलोड बाय QRP. तो क्या ये वैलिड रीज़न है कि उनका जो फाइनेंशियल ईयर है दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज वाई दे आर नॉट कंसोलिडेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एवरी ईयर? डू यू थिंक दिस इज अ वैलिड रीज़न? नो. द ऑडिटर्स हैव ऑल्सो बीन फाइंड विद द पोजिशन. भैया ये तो बहुत गलत बात है, ऑडिटर्स को भी समझ नहीं है इस बारे में. नाउ प्लीज सजेस्ट. QRP needs to prepare the consolidated financial statement by also consolidating the SPS. बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं यहाँ तक. In this case, the case this is not done. The auditors need to qualify the report on consolidated financial statement. So बिल्कुल सही बात लग रही है अभी तक तो ये वाली. Still we are going to read the other three options. The QRP needs to prepare the consolidated. बिल्कुल ठीक है. In case this is not done, what will the auditor do? The auditors need to give emphasis of matter. Do you think emphasis of matter would be justified? No, this is not justified. Why? Because this is not a substitute for qualification. यहाँ पर उन्होंने financial statements की true and fair view दिख ही नहीं रहा है, उसमें include ही नहीं करे details. तो definitely this is not the correct option. Next is QRP management. QRP management's view is right. Right तो है ही नहीं, गलत. Auditors of QRP should have done materiality assessment in respect of non-consolidation. No. The auditor should have asked the management to include in notes the consolidation notes in the consolidated financial statements and also take management. तो बिल्कुल ही बेकार बातें लिख रखी है. They should have consolidated the financial statements because the reason is also very much not valid, and also there is no scope कि आप ऐसे बच जाओगे that you are not going to consolidate the financial statements. यहाँ पर कोई scope नहीं है. So the correct option in this case will be A, that the financial statement should have been consolidated, and in case it has not been done, the auditors need to qualify their report. ठीक है. Let's move on to the next question. Do you agree with the view of the auditors of QRP regarding not testing? नहीं, हम इस पर agree नहीं कर रहे थे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. Now what would be your suggestion here? So auditors have precedence on the basis of which they have formed a view, and that is completely acceptable. No, that is not completely acceptable, because they have not formed the opinion or a view on the basis of checking the details or the data of the client, but they are forming the view on the basis of past year experience of other clients, not the same client, right? Now the auditors need to perform the procedures before forming any view. Any such precedence of the other client cannot be taken for QRP without performing any procedures of the auditors. So बिल्कुल सही बात लिख रखी है. The auditors have precedence on the basis of which they have formed a view, and that is fine. That is not fine. वही तो problem है. Next, the auditors have a precedence on the basis of which they have formed a view, and that is fine as far as they don't want to test the controls. गलत. तो correct option इसमें सीधा सीधा पता चल रहा है clearly. B is the correct answer, right? So this is also done. Okay, so we have completed the case study number 12 also. So we are done with 11 and 12 both. In case you enjoyed participating with me and enjoyed solving this case scenarios with me, please give this video a big thumbs up. Share them with your friends so that they can also use these videos for quickly covering up all the case scenarios and MCQs. And if you like the channel, if you like the content on this channel, please subscribe to the channel if in case you have not done it yet. And that's all for today, guys. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.